बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Assalamu alaikum, my dear students. I'm your teacher, Miss Hafsi Yasir, and today I'll be explaining about GDP and per capita income. Alright, so before I start, just tell me one thing, that assume that you are standing in a market, right? And in that market, you are observing that over there you are having raw materials, alright? Then you are having some fine goods over there. That's mean the products that has been, it's manufactured products. And even many of the people are giving you services also. There's a barber in the mall, alright. There is an engineer, he's giving you services, guiding you, alright, if you're going to buy this product, this is going to happen. So there are people who are giving you services, there are people who are selling the finished goods, there are people who are having the raw materials with them, each and everything. रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स, क्या याद आ रहा है? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, है ना? इजंट इट? सो बेटा अब अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा इस मॉल में टोटल अर्निंग कितनी हुई, राइट? तो इस मॉल ने अर्न कितना किया या कितना ज्यादा प्रोड्यूस किया लोगों ने, सो दैट इस मॉल में कितनी प्रोडक्शन आपको नजर आई. प्रोडक्शन आप कैसे ऑब्जर्व करेंगे? रॉ मटेरियल, नंबर ऑफ रॉ मटेरियल्स काउंट करोगे कि इस मॉल के अंदर रॉ मटेरियल्स टोटल थे कितने. तो टीचर फॉर एग्जांपल मुझे रॉ मटेरियल नजर आए टोटल 1 लाख के. ओके, डन हो गया जी. बेटा फिनिश गुड्स कितने के देखे आपने? बस मुझे लगा फिनिश गुड्स की जो प्रोडक्शन थी ना वो ऑलमोस्ट 2 लाख की थी. और बेटा सर्विसेज कितनी नजर आ रही थी ना? सर्विस जो लोग दे रहे थे ना उससे जो अर्निंग मुझे नजर आ रही थी 50,000 की थी. ऑलराइट, सो 1 लाख, 2 लाख, 50,000, 3,50,000. तो मैं पूछूंगी क्या टोटल अमाउंट यही नजर आ रहा है आपको? आप कहेंगे जी बस बिल्कुल. तो बेटा इसी तरह कैलकुलेट होती है प्रोडक्शन, आपके कंट्री की प्रोडक्शन, राइट? सो द टोटल प्रोडक्शन, GDP stands for gross domestic product, the total value of the final goods and services, the final goods that your country is having and the services your country is having, the total in the 1 year, जितना भी एक साल में आपकी कंट्री प्रोड्यूस कर रही है उसमें जितनी भी प्रोडक्शन हुई है, be it's raw material, that is primary industry, be it's the heavy industries or the cottage industries, whatever they're producing, right? Whatever the amount of the production, the final goods and the services produced within the country, whatever the services have been given in the country, that is the part of GDP. It helps us to know about the economic growth, how much a country produces, right? How much a country is producing, whether the economy is growing or declining. ये आपको सब कुछ बताती है GDP. GDP आपकी कंट्री के जितने भी जो लोकल जो आपने प्रोड्यूस किया, राइट? कोई और बाहर से आया सेल करके चला गया, नो. Something has been earned by your own country, the domestic product, right? It's about you. Pakistan is producing. That's the GDP. What are we producing? In agriculture we're producing. Industries we are producing. The services that we are giving. Right? That's the part of GDP. Alright. Let's just go in deep. GDP, for example, the Pakistan produces crops. ठीक है? Manufactured goods. ठीक है? Okay, ये भी हो गया. Like services दे रहा है, education, transport in 1 year. ठीक है ना? आपने कितने नए स्कूल्स बनाए, कितनी नई यूनिवर्सिटीज बनी, राइट? आपका जीडीपी में ये सब काउंट हो रहा है, राइट? दिस इज ऑल जीडीपी. लेट्स एक्सप्लोर मोर अबाउट जीडीपी. हियर वी आर हैविंग जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द मनी स्पेंट ऑन डिफरेंट थिंग्स. यानी कि आप दो तरह से कैलकुलेट करते हो. आपके मुल्क ने कमाया कितना, राइट? आपके मुल्क ने प्रोड्यूस कितना किया, है दोनों सेम चीज है. आपको जस्ट अंदाजा लगाना है. 4 चीजें जब हम ऐड करते हैं ना तो बनती है बेटा, इसका फॉर्मूला बनता है. ठीक है? जीडीपी का फॉर्मूला C+I+G+X&M. अब ये है क्या? कंजम्पशन, मनी स्पेंड बाय द पीपल. आपके मुल्क में देखो पैसा लोगों ने खर्च कितना किया. अगर एक इंसान ने खर्च किया तो दूसरे इंसान ने उस पैसे को अर्न किया, राइट? आप गए एक मॉल के अंदर, आपने चीज खरीदी,
लेकिन आपने अगर चीज खरीदी तो कहीं ना कहीं ये एक साइकिल है, इसका पैसा मिला उस इंसान को जिसने ये चीज बनाई, राइट? So the people who are spending is basically is going to be earned by someone. That is why the total consumption, the investment the industrialist is having in their business, in their factories, in their machines, the government spending, गवर्नमेंट कितना स्पेंड करती है, राइट? गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन स्कूल्स, हॉस्पिटल, रोड्स, ये तमाम चीजें, सर्विसेज, ये सैलरीज ऑफ टीचर्स, पुलिस, आपकी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, आप इन सबको कैलकुलेट करोगी, राइट? और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हमारी एक्सपोर्ट, हमने टोटल एक्सपोर्ट कितनी की और फिर हमारी इंपोर्ट कितनी थी, इसका नेट अमाउंट हम यूज करते हैं, जब जाके पता चलता है कि हमारे मुल्क की जीडीपी कितनी है, ठीक है? तो बेटा अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, हमने हमारी एक्सपोर्ट जो थी, ओके लेट मी जस्ट क्लियर इट, ओके, हमारी एक्सपोर्ट है फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ 100 रुपीज, अल्लाह ना करे लेकिन एक मिसाल दे रही हूँ, ठीक है? 100 रुपीज। और जी इंपोर्ट कितनी है मिस? इंपोर्ट हमारी है 150। ओ आंसर पॉजिटिव कि नेगेटिव? आंसर तो पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि हमने स्पेंडिंग ज्यादा कर ली। तो यहाँ जो x माइनस एम, यानी कि आपका x माइनस एफ आंसर किस में आएगा, प्लस में के माइनस में? मिस आंसर तो माइनस में आ जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमारी एक्सपोर्ट हो 500, हमारी इंपोर्ट हो 100, तो जी आंसर आएगा प्लस 400, यानी कि पॉजिटिव आंसर आएगा, है ना? तो इन तमाम चीजों को जब हम इस फॉर्मूले में डालते हैं, जब जाके हमारी जीडीपी काउंट होती है। बट इनिशियली टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, आपके मुल्क में जितनी प्रोडक्शन हुई, whatever you have produced in a country within 1 year, right? Whatever you are producing within a year, that is the GDP. Within 1 year, whatever you are producing, produced by a country, आप produce करेंगे, आप sell करेंगे, you earn the amount, right? And the total production of your country, and the total production and the services also, right? The value of production and services, right? Here we go. Let me just go again. All right. So it is the total value of all the finished goods and services. ठीक है बेटा? तो जो टोटल आपके मुल्क ने प्रोड्यूस किया तीनों इंडस्ट्रीज के थ्रू, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, दैट इज द पार्ट ऑफ GDP. All right. So let's move ahead and understand the concept of per capita income. ये टर्म आप लोग सुनते हो, per capita income, तो ये है क्या? per capita income से अंदाजा लगाया जाता है कि एक सिंगल सिटीजन की परचेजिंग पावर कितनी है, राइट? per capita income means the average income per person is in a country is having. per person की इनकम कितनी ज्यादा है, per capita income GDP आपने कैलकुलेट कर लिया टोटल प्रोडक्शन अपनी कंट्री का, ठीक है? और फिर आप उसको डिवाइड करते हो टोटल पॉपुलेशन से, तो फिर जो भी आंसर आता है ना वो होता है आपका पर कैपिटा इनकम। इससे अंदाजा लगाते हैं कि जी इस साल के हमारे लोगों की इनकम कितनी थी। पर कैपिटा इनकम एक रफ एस्टिमेट होता है, लेकिन एवरी ईयर अंदाजा लगाया जाता है कि क्या प्रीवियस ईयर से इस ईयर बढ़ी या कम हुई। तो ये आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ बताता है, राइट? इट इज लिंक्ड विद द जीडीपी, so that is why the per capita income is calculated by GDP divided by the total population, and then the standard of living of the people. It tells you about how wealthy an average citizen is, you know, how the purchasing power of the person, अगर इतनी उसकी इनकम है तो वो कितनी चीजें खरीदने के काबिल है, is he able to, you know, आपको is he able to buy the necessities, or is the citizen of your country is able to spend on the luxuries also. This is the exact image that the government is having on the citizens. Alright. So this is how, if a country has a high GDP but a very low and large population, what do you think? Its per capita income may still be low. ऐसा ही होगा। आपकी जीडीपी बहुत पॉजिटिव में आ गई, आप तो खुश थे कि भाई हमारी जीडीपी बड़ी पॉजिटिव आई है, आपने अर्न किया 1000 मिसाल के तौर पे, ठीक है? आपके आज आपकी बड़ी जबरदस्त घर में दावत थी, आपने कहा जी आज तो जी मुझे बोनस मिला है, आज तो मैं खुश हूँ, एक्स्ट्रा मेरी इनकम हुई है, तो जी इस खुशी में
पिछले साल बुलाया था मैंने 500 लोगों को अपने घर, आज तो बुलाऊंगा मैं 1000 लोगों को। जी दावत दे दी आपने अपने घर में 1000 लोगों को। जी लोग भी खुशी खुशी आ गए। फिर आपको अंदाजा हुआ कि यार वो जो मेरा बजट था ना, एक्चुअली वो 1000 के लिए नहीं था, बल्कि वो तो ना 700 का था। तो क्या लगता है सबको पूरा हुआ होगा सब कुछ? है क्या हाल हुआ होगा इस दावत का अंदाजा लगा है। तो बेटा इसी तरह अगर हमारी जीडीपी इंक्रीज है लेकिन हमारी पॉपुलेशन भी ज्यादा है, यू नो दैट्स मीन हमें अपनी जीडीपी को मजीद बढ़ाने की जरूरत है। तो ये गवर्नमेंट को एक क्लियर पिक्चर देती है आपकी कंट्री का जीडीपी, राइट? सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी एज अ ज्योग्राफी स्टूडेंट। आई होप दैट द concept is clear to you. If not, please tell me in the comment section so that inshallah furthermore I can make further videos to clarify your concept. Alright, do comment and tell me how you like my video. Right now I'm signing off. Take care everyone. Allah Hafiz.